व्हाट्सअप पता नहीं आप लोग अगर बोल पा रहे हैं या नहीं. If you can tell, last night was quite rough for me. I had to do एक मिनट. I think frame में नहीं आ रहा मैं ठीक से. Yep, just set this up. Okay, yeah. So actually yesterday, last night I had to. I can't even speak. Last night I had to have an all-nighter, so I didn't sleep. And here I am again at 6:40 a.m. because I have classes going on. So I really can't speak. I really can't speak today. I'm really slow in terms of communication. आज थोड़ा slow सा दिन जाएगा. But I actually the plan is I have to change my sleep cycle. So what I'm thinking is it seems quite efficient. So if I'm, for example, if I sleep 4 p.m. or like 3:30 p.m. and get up at 8 p.m. and then literally like the rest of the time is mine, so I can do whatever, like spend some time on the business or on this vlog or whatever, or my university. So that's my plan. So anyway, I'm sleeping like 4 to 6 hours sometimes even 7 8 on the weekend, sometimes even goes to 10. So but the plan is that this way it is easier to regulate, because what happens is sometimes I don't wake up with an alarm. So at least 4 p.m. to 8 p.m. everyone's there in the house, so. And especially I think the problem and the challenge with most people to wake up is not the fact that you can't wake up. It's just that once you're like awake, once you wake up with an alarm, you're not really like mentally awake, so you still go back to sleep. You're still kind of like sleepy, tired, groggy. But if you have people around at 8 p.m. and 8 p.m. Indian family hustle and bustle, like I'm sure you'll get up. So I think that's the plan, and which is why I'm trying to change my sleep cycle now. So it's a bit rough for me today, but I'm still feeling good, feeling powerful. So for example, today morning, usually I take my dog out for a walk, about 8 a.m. 9 a.m. के आसपास, but it gets really sunny sometimes. So that's not the perfect time. I would like to take him out earlier, but of course वो तो मेरे पे डिपेंड करता है मैं कब उठता हूँ. So but it's आज because I was awake all night, literally मैं उसको like 5:30 ले गया, and it was amazing. Like वो vibes ही different आते हैं, when you're like out in the park, especially greenery में 5:30 a.m. you just go out and listening to like some slow beat music like Kabira and like Iktara and all those like Bollywood music, or even like Love Yourself by Justin Bieber. Like I was literally like I'm recalling the songs I heard today morning, and slow beat hai, gets you comfortable and gets you like in a good mood early morning. So today so far has been good. So this is a shift in I think sleep cycle I'm going to take. Let's see. नहीं चला तो नहीं चला यार. We'll come back. So that's that. I guess आप बहुत लोगों को आपको पता नहीं होगा कि मेरे पास डॉग था. So एक रिवील होगा एक दिन, इसकी अलग वीडियो बनेगी. My pet dog reveal, whatever. So I'll try to build some hype around that video later on. So you guys, leave a comment down below if you're excited for that video, if you want that video soon. I'll make that video soon then. But I think today the beard has to go. The beard has to go. Like as much as I like my beard, the fact of the matter is it doesn't really look good because अभी properly नहीं आ रहा वो. So I'll have to like shave it off today. And especially वो मैं जब ये videos वापस देखता हूँ YouTube पे कैमरा से, like the beard is not looking good. So so YouTube is like that harsh reality for me that crap, I have to shave off my beard. So I was actually मैं हमेशा से excited था कि दाढ़ी आएगी, but it's a bit early. I can wait for another one. I can wait for another year or two until properly aayegi, then I'll like keep my beard. But yeah, I don't know, like my communication skills have significantly gone down because of this sleep deprivation. But necessary, guys, necessary. I really feel like this is going to be a good plan. Especially staying in Jakarta, having university in
सिडनी, वो थोड़ा टाइम डिफरेंस रहता है, और अभी लिटरली लास्ट वीक तक 4 आवर्स का टाइम डिफरेंस था, तो मैंने चेंज किया, अब वापस 3 आवर्स हो गए। सो 3 आवर्स स्टिल मैनेजेबल, बट वो भी काफ़ी टाइम गैप होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी कोई क्लास 7 बजे है, आई हैव टू वेक अप 4 AM, you get what I mean? So वैसे टाइप की चीज़ें गेट अनोइंग, इवन दो लाइक यू कैन कस्टमाइज क्लासेस हियर एंड देयर, तो वो बड़ी फ्रीडम है यूनिवर्सिटी। थैंक यू फॉर हैविंग दैट रियली, अदरवाइज 3 बजे उठना पड़ता है मेरे को। बट स्टिल हैविंग दैट सेड, यू नो, काफ़ी जल्दी उठना पड़ता है, एंड आई एम अ नाइट आउल, आई रियली हैव फन लाइक यू नो फोकसिंग एट नाइट, क्योंकि बिल्कुल शांति होती है, क्या होता है। सो आई थॉट कि भाई ये तो अच्छी बात नहीं है, मैं अर्ली सोता हूँ, बाद में सुबह भी ग्रॉगी उठता हूँ, आई डोंट लाइक इट। सो आई थॉट चलो भाई ठीक है, दोनों का मिक्स करते हैं, दिस इज द ओनली सोल्यूशन आई कुड फाइंड। So so I wanted to actually discuss about that. So hopefully, like you know, if some of you guys are also facing the same issue because of staying at home, you know, studying from home की वजह से टाइम डिफरेंस का प्रॉब्लम फेस हो रहा है, या इवन जनरल लाइफ में भी अगर ये प्रॉब्लम फेस हो रहा है कि भाई नाइट आउल हैं बट अर्ली उठना पड़ रहा है, गिव इट अ ट्राई। मैं अभी आई कांट एंडोर्स दिस आइडिया, क्योंकि मैंने खुद कभी किया नहीं, बट गिव इट अ ट्राई, अगर आपके लिए चलता है तो बहुत अच्छी बात है यार। Okay, so now for the things that I have to do today. I have to do today. आज आज मंडे है ना, तो आज मतलब बैंक रजिस्ट्रेशन की कॉल होगी, जिसमें आई एम सो एक्साइटेड अबाउट दिस कॉल, क्योंकि एग्जीक्यूटिव बात करेगा आज मेरे साथ, और अभी तक सिर्फ टेक्स्ट हुआ था, तो कॉल करेगा मेरे को और प्रॉपरली बोलेगा भाई ये प्लान है, आपको ये करना पड़ेगा। सो प्रॉपर मैं एक प्लान बनाऊंगा, और साथ में आज का लाइक ऐसा है, कल मैं चाहता था ये कोडिंग प्रोजेक्ट हो जाता ख़त्म, बट जैसे मैं डीबग करने लगा, लाइक आई नो मैनी पीपल कैन रिलेट टू दिस, डीबग करने लगा वो लाइक एक के बाद एक प्रॉब्लम्स निकलने लगी, एंड मैंने रियलाइज़ किया कि बहुत सारे टेस्ट केसेस तो मेरे इसलिए पास हो रहे थे क्योंकि स्टैंडर्ड आउटपुट एक आ रहा था। लाइक उन लोगों के पास ना एक टेस्ट केसेस थे 4-5, जिसमें वो इनवैलिड आउटपुट के लिए एक कस्टम एरर हमें बनाना था, तो मैंने कस्टम एरर बना रखा था, बट प्रॉब्लम ये हो रही थी कि वो तो 2-3 इनवैलिड एरर्स आ रहे थे, 2-3 इनवैलिड आउटपुट्स का एरर मेरा गलत आ रहा था, उसमें मैं कुछ पता नहीं कुछ वियर्ड सा आउटपुट दे रहा था, और बाकी आई कांट एक्सप्लेन इट, और बाकी जो आ रहे थे जिसमें कस्टम एरर मैं दिखा रहा था, जिसमें मैं प्रोग्राम में कस्टम एरर दे रहा था, वो एक्चुअली कस्टम एरर इसलिए आ रहा था क्योंकि वो लिटरली बस एक प्रिंट स्टेटमेंट आउटपुट कर रहा था, वो लॉजिकली नहीं हो रहा था, दैट वाज जस्ट लाइक अ कोइंसिडेंस, बाय चांस हो रहा था वो। तो अब जब मैंने डीबग करना शुरू किया, मैंने रियलाइज किया ओ ये सेक्शन ऑफ कोड तो बाई चांस ही टेस्ट पास हो रहा था, एक्चुअली में तो अभी ये पार्ट खोखला है, तो उसमें कोड डालना है, क्या करना है। तो अलॉट ऑफ इट हैज़ बीन डन, मैं रात को बैठा हूँ यही फिक्स करने बैठा हूँ, और रात को एक्चुअली मैंने साथ में अपना एक प्लान भी बनाया कि भाई मैं कह रहा था ना कि मैं आई वांटेड टू मेक दैट प्लान ऑफ कितने असाइनमेंट्स अगले 2 हफ्तों में आ रहे हैं, तो 2 असाइनमेंट्स आ रहे हैं अगले 2 हफ्तों में, तो उसके लिए मैं पढ़ाई करूँगा। आई थिंक बस एक ही हफ्ते के लेक्चर्स हैं जिसके साथ कैचअप करना है, तो वो कैचअप करेंगे, और साथ में उस असाइनमेंट पे काम करने लगेंगे। अगले 2 हफ्तों में 2 असाइनमेंट्स हैं जो सबमिट करने हैं, तो वो प्लान बन गया है, और तो वो प्लान बना रहा था, और साथ में थोड़ा प्री वर्क था इस हफ्ते का स्टार्ट के लिए, तो प्री वर्क मैंने ख़त्म कर रखा है, तो दैट इज़ गुड न्यूज़। और साथ में और साथ में मैं यही कोडिंग का ही कर रहा था ये रात भर बैठ के। तो अब मैं सुबह उठ के, अभी एक ही कॉल ख़त्म हुई मेरी एक क्लास की, अब आई थिंक दूसरी क्लास है, बट वो रिकॉर्डेड लेक्चर है, तो आई ट्राई टू कीप माई सेल्फ इन डिसिप्लिन, तो आई ट्राई टू टाइम टू टाइम वो वीडियो अभी ही देखने के लिए, अदरवाइज बाद में बहुत ये बंडल बन जाता है और देखा नहीं जाता। तो सो आई ट्राई टू कीप इट इन डिसिप्लिन, सो आई एम गोइंग टू वॉच इट नाउ। आई थिंक 10 मिनट बचे हैं मेरे 7 बजने में, तो वो करेंगे, और साथ में फिर उसके बाद 1-2 क्लासेस हैं, बट आई थिंक आज लाइव नहीं है शायद कोई, तो उस सब के बाद फिर मैं बैंक के कॉल्स पर लग जाऊँगा, और उसके बाद फिर मुझे एक्चुअली मुझे एक पॉडकास्ट का एक और कोई मिला है गेस्ट, पोटेंशियल गेस्ट, तो उनके साथ थोड़ा कॉल करेंगे, थोड़ा कंफर्टेबल बनेंगे, अगर उनको इंटरेस्ट आया इसमें तो वो भी आएंगे हमारे पॉडकास्ट पे। एंड दिस गेस्ट इज़
I feel is going to be very popular on you. I mean, maybe I guess, but I think मेरे channel पे काफ़ी popular होगा ये compared to other videos because ये जो जिस कंपनी में काम करते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिवली इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करते हैं थ्रू यूट्यूबर्स. तो फॉर एग्जांपल जो बिगेस्ट यूट्यूबर्स भी हैं ना हमारे कंट्री में, उन सब के साथ इस कंपनी ने काम कर रखा है. तो आई फील लाइक बहुत लोग आपको आई एम सो टायर्ड, यू कैन ऑलरेडी टेल कि मेरी स्पीच कितनी खराब हो रही है, लाइक स्पीकिंग स्किल्स. ओके, माई पॉइंट इज आई एम श्योर कि मेरे ऑडियंस में से मेरे कम्युनिटी में से बहुत लोगों को ये इंटरेस्ट होगा कि ओ, इन लोगों ने इस कंपनी ने इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स काम करना क्यों चूज़ किया और कैसे किया और क्या एक्सपीरियंस रहा उनका. तो आई थिंक उस हिसाब से हमारे जो इस कंपनी की मार्केटिंग डायरेक्टर है वो मेरे साथ बात करना, अगर वो हम बात करेंगे आज, अगर उनको इंटरेस्ट आया पॉडकास्ट पाने को, विच आई थिंक शी माइट बी. So that will be, I think, great for our community, and we'll be able to learn a lot from her and her experiences. So hopefully that also comes to fruition. तो उस कॉल के बाद, बैंक कॉल के बाद, फिर इस पोटेंशियल गेस्ट के, तो आई थिंक 15-20 मिनट की कॉल के बाद, उसके बाद प्लान है क्या करने का यार. ओ, आई हैव टू ऑल्सो ईमेल. मैंने एक्चुअली ईमेल प्रिपेयर कर रखा था और साथ में मेरे पहले क्लाइंट के लिए, जो आयुर्वेद कंपनी थी, उस क्लाइंट के लिए मैंने एक रोस्टर प्रिपेयर किया था, बट उन लोगों को मैंने अभी ईमेल नहीं कर रखा. सो लिटरली बस सेंड बटन दबाना है और दूसरे क्लाइंट के लिए रोस्टर प्रिपेयर करना है. तो आई थिंक वो उस पर काम करूँगा एंड होपफुली दोनों क्लाइंट्स के रोस्टर्स प्रिपेयर और साथ में ईमेल सेंड हो जानी चाहिए. तो वो होपफुली आज 3 बजे से पहले होना चाहिए. उसके बाद मैं सो जाऊंगा, फिर 8 बजे, उसके बाद 8 बजे के बाद वापस मैं यूनिवर्सिटी क्लासेस पे लग जाऊंगा और आई सी मैं हो सकता है या तो कैलकुलस या तो लीनियर अलजेब्रा पढ़ूंगा. एंड या दैट्स अबाउट इट. सो ऐसा जा रहा है आज का दिन. आई थिंक 2-3 दिन लगेंगे थोड़ा वो स्लीप साइकिल सेट होने में, बट एक बार हो जाएगा ना, आई एम श्योर आई विल बी लाइक क्विकली एडजस्ट इट, क्योंकि मैं काफ़ी लाइक फ्रॉम ईयर्स एंड ईयर्स मैं लेट सोता आ रहा हूँ. तो आई थिंक वही उसी 3 बजे के 6 हो जाएं तो आई थिंक उतना डिफरेंस नहीं होगा. बस ये कि थोड़ा आई थिंक 2-3 दिन लगेंगे, अदरवाइज कोई हेडेक नहीं होगा. अरे भाई ये क्या यू नो ड्रास्टिक चेंज आ गया. आई डोंट थिंक इट्स दैट ड्रास्टिक. सो होपफुली इट शुड गो गुड. तो उसका मतलब ये कि अगले 2-3 दिन व्लॉग्स काफ़ी ही स्लो पेस्ड और कम्युनिकेशन स्किल्स विल बी बिलो एवरेज. सो मैंने दे रखी है डिस्क्रिप्शन, मैंने अभी वार्निंग दे रखी है आप लोगों को, तो बाद में मत बोलना अरे भाई इसने तो व्लॉग्स बर्बाद कर दिए. अगले 2-3 दिन के थोड़ा प्लीज़ कोऑपरेट गाइस. आई थिंक दैट्स अबाउट इट. आई वोंट वेस्ट मोर ऑफ योर टाइम. आई वोंट टेक अप मोर ऑफ योर टाइम. वेस्ट नहीं कर रहा हूँ यार. आई होप थोड़ा मैं वैल्यू दे रहा हूँ आपको. एंड लेट मी नो बाय द वे एवरी टाइम यू हैव एनी ओपिनियन और एनी पर्सपेक्टिव कि भाई तू ये ऐड कर सकता है, ये ऐड कर सकता है, एनी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म प्लीज़ फील फ्री टू लीव बिलो. और अगर वैसी क्रिटिसिज्म करनी डिस्ट्रक्टिव, आई एम श्योर वो लोग भी हैं, तो भाई लीव कर दो, ठीक है, कोई बात नहीं. बट जस्ट आई एम लेटिंग यू नो, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता. आई हैव हर्ड लॉट अबाउट लाइक अरे तू तो ये है वो है. लाइक आई डोंट रियली केयर अबाउट दिस काइंड ऑफ थिंग्स एनीमोर, यू नो. सो ऑलराइट, यस, thank you, stay safe, stay home, and I will talk to you tomorrow again.